When Madam Prasudhan was singing from dais, नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को न देखो. I was thinking that this song is appropriate about this university. हमारी बिल्डिंग्स को न देखो, हमारी साफ सफाई को मत देखो, हमारे वाइस चांसलर को मत देखो, हमारी फैकल्टी को मत देखो, हमारे स्टूडेंट्स को मत देखो. But I am here not only to see but to interact. Chairperson of this group, Dr. Ashok Gadia ji, वाइस चांसलर राणा साहब, हम लोग बहुत करीब करीब में वाइस चांसलर रहे हैं. I was in Bareilly, Rana Sahab was in Nainital, beautiful place, beautiful university. Shukla Sahab, professors, और कोई हो. Everyone was speaking Hindi, English. I do not see what are the reasons. That is why I should avoid our mother tongue. If we could establish a link between our mother tongue and foreign language, then definitely we will go in the right direction. As far as the concept of universities is concerned, now three terms are important. One is privatization is a reality, digitalization is a reality, and internationalization is a reality. When I was analyzing the case, this university is a private university. कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट वाले लोग गड़बड़ होते हैं, गलत होते हैं, बहुत ईमानदार नहीं होते हैं, पहले पैसे के मामले में, बाद में एकेडमिक्स के मामले में. लेकिन समय खुद ही जवाब दे देता है. You don't need to submit any printed certificate from university side. If your deeds are good, definitely society recognizes you. देखो शांति निकेतन क्या था? प्राइवेट था. शुरू में जामिया मिलिया क्या था? प्राइवेट था. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है? प्राइवेट है. दुनिया की जितनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, you count 1 to 10, out of 10 universities you will find that 6 are private, 4 are public universities. So as far as this stigma is concerned, कि private universities are dishonest, that is not going to carry on for a very long time. बहुत थोड़े समय की बात है और ये धीमे धीमे खत्म हो गया. And digitalization and internationalization, these two are other important segments. And I am sure on digital platform, this university must be doing very well. And as far as international connections are concerned, I came to know that the maximum number of foreign students, not only in Rajasthan, but if you see the cases of other universities too, the position of this university is very good. किसी यूनिवर्सिटी को अच्छा होने के लिए चाहिए क्या? 3 चीजें चाहिए अच्छा होने के लिए. क्या अच्छा होने के लिए? Abundant resources. Resources not only physical resources, intellectual. हर तरीके का abundant resources. So you have a chairperson like Gadia, you have a good vice chancellor, pro vice chancellor, you have a good academic team, you can attract person from Japan, you can bring person from Farukhawad, so you have abundant resources. Second thing, transparent administration. So as far as the private management is concerned, that is very transparent. I hope universities are being managed now digitally, so management is transparent. And third one, academic congruence. What is this academic congruence? Academic congruence means whoever so have been responsibility,
जो बच्चा जिस क्लास में आया है वो उस क्लास के लायक है कि नहीं, जो टीचर पढ़ाने आया है वो पढ़ाने के लायक है कि नहीं। I was in Oxford University and I asked from a professor what is the reason that is why this Oxford University is surviving from last 900 years. So that professor replied me कि in Oxford University ऐसा कोई विशेषता नहीं है, लेकिन यहां पर टीचर वो है जो टीचर होने लायक है और स्टूडेंट वो है जो स्टूडेंट होने लायक है। अगर दो में आपने एक में समझौता कर लिया तो फिर बहुत लंबा चल नहीं पाएगा। यूनिवर्सिटीज बैकबोन है किसी कंट्री की। अगर आप देखें तो अपने यहां नालंदा खत्म हुआ 1193 में और ऑक्सफोर्ड आया 1190 में। टाइम देखिएगा कि when Nalanda was on peak, the share of Indian economy, the share of our country in world market was 24%. और 1193 में नालंदा को जलाया गया और जलाने के बाद में जब खत्म हुआ और 1190 में ऑक्सफोर्ड आया। ऑक्सफोर्ड कोई बहुत ईमानदार लोगों की यूनिवर्सिटी नहीं थी। ऑक्सफोर्ड में जो बच्चे, इंग्लैंड में उस समय कोई यूनिवर्सिटी नहीं थे तो बच्चे पढ़ने फ्रांस जाते थे। फ्रांस में बच्चों ने नालायकी की, शैतानी करी जो करते हैं। तो पूछा फ्रांस वालों ने किन बच्चों ने शैतानी करी, इंग्लैंड के बच्चों ने जवाब नहीं दिया। तो फ्रांस ने जितने इंग्लैंड के बच्चे थे सबको निकाल दिया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में, पेरिस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ोगे। वो गुंडे बदमाश बच्चे इकट्ठा हुए ऑक्सफोर्ड में। सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं खोली, चर्च ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं खोली। वो जो बैड एलिमेंट थे उन लोगों ने इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा हम पैसा इकट्ठा करते हैं, हम टीचर्स को तनख्वाह देंगे। ऑक्सफोर्ड वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट्स। और वो यूनिवर्सिटी ऐसी थी कि जिसको गांव वालों का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि ये लड़के वो हैं जो निकाले गए हैं पेरिस यूनिवर्सिटी से, तो ये बहुत सीधे साधे नहीं है। तो जब 1190 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बननी शुरू हुई, 2 साल में गांव वालों ने झगड़ा करके उनको भगा दिया ऑक्सफोर्ड से। 2-3 साल में अगर आप ऑक्सफोर्ड जाएं तो वो जगह अभी भी उन लोगों ने प्रिजर्व कर रखी है। पूरी चौड़ी सड़क बनी हुई है, बीच में एक 4x4 का कच्चा जगह है। हम एक दिन किसी से पूछा कि बीच सड़क के बीच में कच्चा गड्ढा क्यों है, कि यहीं पर टाउन और गाउन का झगड़ा हुआ था। गाउन वो जो बच्चे वहां पर स्टूडेंट पहनते हैं और टाउन जो गांव वाले थे, और भगा करके उन लोगों ने वहां से भगा दिया। वो बच्चे भाग करके कैम्ब्रिज गए और उन गुंडे बदमाश बच्चों ने दूसरी यूनिवर्सिटी शुरू करी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज 1210 में आई ना। ऑक्सफोर्ड वाले मनाने गए कैम्ब्रिज वालों को कि भाई आप आ जाओ, हमसे गलती हो गई। कुछ लौट के आए, कुछ लौट के नहीं आए। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में आज भी झगड़ा चलता है और एक में मिलाकर के उनको कहते हैं ऑक्सब्रिज ना। उनके जो मैचेज होते हैं वो भारत पाकिस्तान जैसे होते हैं, उनकी जो एकेडमिक राइवलरी होती है वो बिल्कुल भारत पाकिस्तान जैसी होती है। वो एक दूसरे को हजम नहीं कर पाते हैं क्योंकि कैम्ब्रिज वाले नाराज हैं कि ये साले हमसे टूट के वापस चले गए थे, हमको ऑक्सफोर्ड वालों ने निकाल दिया था और ये टूट करके वहां फिर चले गए थे। मेरा कहना यह था कि टाइम 1190, 1193 हमारी यूनिवर्सिटी डाउन हुई, उनकी यूनिवर्सिटी उठी। उनकी यूनिवर्सिटी उठी तो वर्ल्ड मार्केट में उनका सिनारियो, उनका कब्जा हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हुई तो वर्ल्ड मार्केट में हम खत्म होते जा रहे हैं। आज फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सपोर्ट से हमारी शिक्षा व्यवस्था उठ रही है। कहते हैं कि यूएई ने जितना आपकी बार पेट्रोल बेचा होगा उससे ज्यादा भारतवर्ष ने सॉफ्टवेयर बेच करके पैसा कमाया है। तो ये सॉफ्टवेयर बेचना किसने, कहां से, ये बेचने की कुव्वत कहां से पैदा हुई? ये 15 साल पहले कैपेसिटी क्यों नहीं थी? ये कुव्वत इसीलिए पैदा हुई कि कुछ इंस्टीट्यूशंस उभर रहे।
निश्चित रूप से उभर रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस उभर रहे हैं उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत बढ़िया हाथ है, बड़ा सकारात्मक रोल है। तो हमें लगता है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस उभर रहे हैं उनमें से एक इंस्टीट्यूशन राजस्थान का या मेवाड़ यूनिवर्सिटी भी है। आपकी साउथ की जो यूनिवर्सिटी थी, अन्नावलाइज नहीं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, मणिपाल। मलेशिया इतना एडवांस देश अपने आप को क्लेम करता है, कहते हैं मलेशिया में हर चौथा डॉक्टर जो है वो मणिपाल का पढ़ा हुआ है ना। मलेशिया का हर चौथा डॉक्टर मणिपाल का पढ़ा हुआ है, लेकिन आज से 20 साल पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए डॉक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन नहीं देती थी कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है ना। तो विदेश में वो प्रैक्टिस कर सकता था, इंडिया में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। अब सिस्टम बदला है। दूसरा चीज जो अच्छी यूनिवर्सिटी होने के लिए होना चाहिए, जो मैं आपका पोर्टफोलियो देख करके सोच रहा था कि टू बी अ लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड 3 other components are required. And what are those components? कि the teacher taught ratio should be 1:11. हमें लग रहा है आपके यहाँ वो 1 से 1:40 वाला नहीं होना चाहिए अगर आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होना चाहते हैं। That should be 1:11. अगर वो 1:11 होना चाहिए तो आपके यहाँ टीचर्स का नंबर अच्छा है और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में टीचर्स का नंबर अच्छा है। फिर दूसरा जो क्राइटेरिया है कि 20% स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ना। आप उस मामले में भी भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ अच्छा विदेशियों का नंबर है। और तीसरा क्राइटेरिया है कि 42% पब्लिकेशंस शुड बी इन जॉइंट कोलैबोरेशन विद अदर कंट्री। हमें लग रहा है उस फील्ड में भी आप अच्छा कर रहे होंगे। पहला दूसरा क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, तीसरा क्राइटेरिया भी आप जल्दी पूरा कर लेंगे। तो जब 3 ही क्राइटेरिया हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होने के, तो आप पीछे क्यों रहेंगे? आप अच्छे रहे। लेकिन हमने सब अच्छी अच्छी बातें करी ना? कुछ हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करना है। द प्रॉब्लम इज दिस विद इंडियन यूनिवर्सिटीज, actually students do not know what to study and teachers do not know what to teach and how to teach. That is very important. I usually say कि what you know that is not education, what you not know that is education. So you have to explore those fields with whom you are not familiar. Simply my knowledge is bookish knowledge. The greatest challenge before education is that knowledge is ready-made knowledge. जब तक ready-made knowledge है तब तक ना आप अच्छे स्टूडेंट होंगे और ना हम अच्छे टीचर होंगे। तो फिर कैसा हो? करिकुलम तो बुकिश होता है, करिकुलम तो रेडीमेड होता है। तो कहते हैं curriculum should not be covered, but curriculum should be discovered. Unless teacher and students both will not discover the students, the search of knowledge will not be complete. There are 3 important components. There are 3 important expectations from the university. First one is preservation of knowledge. जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस होना चाहिए। हम जड़ से जुड़े होने चाहिए। पतंग तभी तक उड़ती है जब तक डोर हाथ में रहती है, और जिस दिन डोर हाथ से छूट जाती है, पतंग कट जाती है, तो 10-5 फीट ऊंची उड़ सकती है, नीचे गिरेगी। और ये पतंग की डोर तभी तक आपके हाथ में रहेगी जब तक नॉलेज को प्रिजर्व करने की कैपेसिटी आप में है। हमने अपना नॉलेज प्रिजर्व नहीं किया, हम किसी से पीछे नहीं रहे। हमको जो पढ़ाया गया हमने वो पढ़ लिया, हमको जो साइंस बताया गया हमने वो साइंस मान लिया, हमको जो मैनेजमेंट बताया गया हमने वो मैनेजमेंट मान लिया। अरे हमारा पॉलिटिकल साइंस का पर्पज कुछ दूसरा था। वेस्टर्न
कंट्रीज थी, उनका पॉलिटिकल साइंस का पर्पस कॉलोनियां बनाना था। हमारा मेडिकल का पर्पस दूसरा था, वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, हम कहते हैं कि नहीं, कमजोर भेजिएगा। हमारी इकोनॉमिक्स का पर्पस अलग था, उनके इकोनॉमिक्स का पर्पस है कि जो कमाएगा वही खाएगा। हमारे यहाँ ये भी है, अगर परिवार में एक कमाता है तो पूरे परिवार को खाने का हक है। हमारा साहित्य का अर्थ अलग था, उनका इतिहास अलग है, साहित्य अलग है। अरे मेरा तो इतिहास वही है जो मेरे म्यूजिक में है, जो मेरे गाने में है, जो मेरी कविताओं में है, वो अलग से किताब में नहीं लिखा गया है। वो हमने वो म्यूजिक वाला, वो कविताओं वाला, वो कहानियों वाला अपना इतिहास छोड़ दिया, तो हमने वो इतिहास पढ़ लिया जो हमको दूसरों ने पढ़ाया। क्या करोगे जानकर? इतिहास अपने मुल्क का ये अनुवाद के अनुवाद का अनुवाद है। तो my hunch was this, कि efforts were made to detach the student of this country from the cultural prosperity of our society, and that prosperity should be not only explored but maintained too. Further, the first component of university preservation of college is preservation of knowledge. That is very important. आपने बहुत सारे से म्यूजियम बनाए हैं, ये प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज की दिशा में एक कदम है। हमको हमारी अच्छी बातें बताई ही नहीं गई। क्या हम लड़ाई जिंदगी भर 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल हारते ही रहे? कुछ लड़ाई हमने जीती नहीं। जो लड़ाई हारी हमने वो हमको बहुत बताई गई, जो लड़ाई जीती हमने वो हमको बताई ही नहीं गई ना। तो उन लड़ाइयों की भी बताने की जरूरत है। और जब तक आपको अपने आप पर गर्व नहीं होगा, तब तक न टीचर अच्छा कर सके न स्टूडेंट अच्छा कर सके। कर्नल टाट ने हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किताब लिखी है। उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया था कि उन्होंने कहीं पढ़ा कि जैसलमेर में कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके लोग हाथ से पहाड़ के टुकड़े को तोड़ देते हैं। तो कर्नल टाट ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि भाई ये असंभव सा काम और ट्राइबल लोग कैसे कर लेते हैं। तो जैसलमेर गए, उन्होंने उस ट्राइबल कम्युनिटी को बुलाया, उससे कहा, तो उनके सरदार ने कहा कि हाँ मैं तोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे 2 घंटे का एक फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद मैं पत्थर को, जो पहाड़ का पत्थर है, उसको मैं हाथ से तोड़ दूंगा। कर्नल टाट ने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। उनकी जो महिलाएं थी, जो उनके आदमी थे उस कम्युनिटी के, उन लोगों ने जोर जोर से गाना गाना शुरू किया। पहले धीमे गाते रहे, फिर जोर से गाते रहे, घंटों गाते रहे। जब आवाज बिल्कुल पीक पर पहुंची तो उनका सरदार उठा, उसने मुट्ठी बांधी, मुक्का बांधा, पहाड़ के बड़े टुकड़े पर अपना प्रहार किया और वो पत्थर का टुकड़ा टूट गया। कर्नल टाट ने उसको डिनर पर बुलाया, बड़े खुश हुए और फिर उससे पूछा कि ये तो ठीक है तुमने तोड़ दिया, लेकिन जब तुम तोड़ सकते थे तो मुझे 2 घंटे वेट क्यों कराया? तुम 2 घंटे शोर क्यों हमको सुनाते रहे? अरे आते तोड़ देते, तुम्हारा भी समय बचता, मेरा भी समय बचता और मैं तुमकी प्रशंसा भी तुम्हारी ज्यादा करता। उसने कहा कि नहीं, मैंने आपका समय नहीं खराब किया। तो कहीं ये लोग कर क्या रहे थे जो शोर कर रहे थे? उसने कहा जो मेरे साथ के लोग थे वो ये कह रहे थे कि मैंने ये लड़ाई जीती, मैंने ये लड़ाई जीती, मैंने ये लड़ाई जीती। और जब लड़ाई जीतने का शोर पीक पर पहुंच गया, तब हमें वो ताकत आ पाई कि मैं मुट्ठी से पहाड़ के टुकड़े को तोड़ सका। तो जब तक आप में वो ताकत नहीं आएगी कि हम में ये क्षमता है, हम में ये कैपेसिटी है, हम दुनिया को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तब तक आप लड़ाई जीत नहीं पाओगे। इसके लिए प्रिजर्वेशन अपनाने एंड सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज कहीं रखा नहीं है। जब तक आप नॉनसेंस से सेंस नहीं निकालोगे, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट। सेंस से तो सेंस सब कोई निकाल सकता है, नॉनसेंस से सेंस कितने लोग निकाल सकते हैं?
गिरता था न्यूटन के बाद में पेड़ से, था तो नॉनसेंस ही ना कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरता है। अगर आप बाइबल देखिएगा या पुराना देखिएगा तो उन लोगों के यहां क्यूरियोसिटी को बहुत प्रमोट नहीं किया गया। अगर आप आदम हवा की कहानी पढ़ें तो कहते हैं कि आदम जी बाग में कहीं टहल रहे थे ऊपर, और कोई गार्डन था, कौन सा कहते हैं, किसका, जन्नत था, जन्नत का बाग था, वहां पर एक फल लगा हुआ था, उसको आदम जी ने तोड़ के खाने की कोशिश करी, खा लिया, और उसको खा लिया तो भगवान नाराज हो गए और भगवान ने कहा कि तुमने पाप किया है, ये फल खा लिया है, तुम पृथ्वी पर जाओ और कष्ट भोगो, पाप भोगो। इसीलिए अगर आप बाइबल में पढ़ो तो जब पब्लिक को एड्रेस करते हैं तो कहते हैं कि हे पापियों, पढ़ करके देखिएगा आप लेकर के, वहां पर कॉमन मैन को जब एड्रेस करते हैं तो कई जगह पर लिखा हुआ सिनर्स वर्ड यूज किया गया है, पापियों कहा गया है। उम्मीद करते हैं कि जो पृथ्वी पर आए हैं वो पाप करेंगे ना। तो आदम को जमीन पर आना वो पनिशमेंट था। वो इसलिए पनिशमेंट था कि उन्होंने एक ऐसे फल को खाने की कोशिश की थी जो दूसरों के लिए अनजान था, वो उनकी क्यूरियोसिटी थी। वैसी ही घटना अपने यहां भी होती है। हनुमान जी सूर्य को फल समझ लेते हैं, मन में क्यूरियोसिटी होती है, सूर्य को खा लेते हैं, और जब सूर्य को वो खा लेते हैं तो डांट उनको नहीं पड़ती, उनको ब्रह्मा से आशीर्वाद मिलता है और उनको द्विज कहा जाता है। पहली बात तो एक सोसाइटी में देखो कि क्यूरियोसिटी को पनपाया नहीं गया। दूसरी सोसाइटी में जो आपने क्यूरियोसिटी थी, आपने कुछ नया काम किया तो उसकी प्रशंसा की गई, और जब प्रशंसा की गई तो नई चीजें क्रिएट होती हैं। सूर्य के बारे में नई जनरेशन, नई ज्ञान आई, और सूर्य की और पृथ्वी की दूरी जितनी बढ़िया हम लोग बता पाए, दूसरा कोई उस समय तक नहीं बता पाया, आज भले को नहीं बता पाए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी में क्यूरियोसिटी को प्रमोट किया गया, दूसरी सोसाइटी में क्यूरियोसिटी को नहीं प्रमोट किया गया। लेकिन आज हमारे यहाँ क्रिएशन ऑफ नॉलेज नहीं हो रहा है क्योंकि क्यूरियोसिटी को हम उतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अरे जब तक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में नहीं बदलोगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। बच्चों के दिमाग में आइडियाज आते हैं, उनको शेप लेने दो, वो गलती करेंगे, गलती करना हक है। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था 107वीं बार में सफलता मिली थी, 106 बार गलती हुई थी। तो क्या जब 106 बार गलती हुई थी तो एडिसन ने कुछ सीखा नहीं था 106 बार गलती करने से? अरे 106 बार की गलतियों से सीखा, तब 107वीं बार वो बल्ब बना पाए। हम अपने प्रोजेक्ट लेते हैं, गलतियां होती हैं, कभी इच्छित परिणाम नहीं निकलते हैं, और नहीं निकलते हैं तो भी हमें बच्चों के आइडियाज को प्रमोट करना चाहिए। नया नॉलेज आप जब क्रिएट करोगे, हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, मुझे नहीं पता कि यहां पर भी वही सिस्टम होता होगा, हिंदी में एक अनसीन पैसेज आता था, ठीक है ना, उसका कहते हैं कि इसका टाइटल लिखो। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो यूपी में नकल बहुत होते थे, चरण पर नकल थे, बच्चे सब कुछ नकल करते थे ना? लेकिन जब अनसीन पैसेज आता था तो उसको कैसे नकल करना, क्योंकि उसका तो कोई जवाब होता नहीं था, उसका तो कोई की होती नहीं थी, उसका तो कोई रेडीमेड आंसर उसका तो कोई था नहीं ना। वो पोइट्री का एक लाइन लिख देते थे कविता की और कहते थे कि दूसरी लाइन लिखो ना। अब उसमें तो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, यू हैव टू क्रिएट नॉलेज। और ये खाली स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, सोसाइटी की भी एक व्यवस्था थी। मैं लखनऊ में रहने वाला हूं, एक बड़े शायर थे वहां पर, उनके परिवार नहीं था, उनके शागिर्द ही उनके स्टूडेंट थे। तो उन्होंने एक अपनी वसीयत लिखी और कहा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरी वसीयत के हिसाब से काम किया जाए। लेकिन ऐसा आया कि शायर साहब नहीं रहे। जब शायर साहब नहीं रहे तो उनका वसीयत खोला गया, और उसमें पहले उन्होंने कंडीशन बता दी थी कि भाई मेरी वसीयत जो मेरे लास्ट रिचुअल है उससे पहले खोली जाए। तो गोमती किनारे कब्रिस्तान में ले जा करके उनकी कब्र वगैरह खोद करके और फिर उनकी वसीयत खोली गई। तो वसीयत में लिखा हुआ था कि मैं
शेर की एक लाइन लिखे जा रहा हूं, और जो दूसरी लाइन पूरा करेगा वही मेरे लास्ट रिचुअल्स करेगा। अब अगली पर्ची खोली गई कि भाई लास्ट लाइन क्या है। तो लास्ट लाइन बड़ी अजीब थी। वो लिखा हुआ था कि तू एक बार देख लेती तो क्या तेरा हाथ टूट जाता ना, कि तू एक बार देख लेती तो क्या तेरा हाथ टूट जाता। अब सुबह से शाम तक सब लोग बैठे रहे, कोई एप्रोप्रिएट दूसरी लाइन नहीं सूझ रही थी। एक धोबी कपड़े धो रहा था नदी में, उसने देखा सुबह से शाम तक ये लोग डेड बॉडी लिए बैठे हुए हैं, लाश को दफन नहीं कर रहे हैं। जब जाने लगा गधे पर कपड़े लाद करके तो उनके बगल से गुजरा, पूछा कि भाई क्या परेशानी है, क्यों बैठे हैं। तो इन लोगों ने अपनी परेशानी बताई कि उस्ताद साहब ऐसा कह गए थे, और जब दूसरी लाइन किसी को सूझेगी तब क्रियाक्रम होगा। तो उसने कहा कि देखो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इन शायरों के कपड़े धोता रहा हूं, ये लोग शायरी करते रहे हैं तो मेरे कानों में आवाजें जाती रही हैं, अगर आप कहो तो मैं ही कोशिश करूं। उन्होंने कहा भाई तू ही कर, नहीं पढ़ा लिखा, इसमें क्या बात। तो थोड़ी देर में उस धोबी ने दूसरी लाइन पूरी की। पहली लाइन थी कि तू एक बार देख लेती तो क्या तेरा हाथ टूट जाता। दूसरी लाइन उसने बताई कि इतना भारी तो तेरे पीनस का पर्दा नहीं था। पीनस वो डोली जिसमें लड़की शादी के बाद विदा होती है, उस पीनस का पर्दा इतना भारी नहीं था, अगर उसको हटा के तुम एक बार देख लेती तो तुम्हारा हाथ टूट जाता। That is creation of knowledge. That is creation of knowledge. और वो creation of knowledge बहुत लिटरेट लोगों द्वारा नहीं किया गया, वो creation of knowledge ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो उतना समझदार नहीं था, एक इनफॉर्मल सेटिंग थी। तो जब तक यूनिवर्सिटीज में क्रिएशन ऑफ नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम गुलामी की भाषा पढ़ेंगे, तब तक हमारा दिमाग गुलाम ही रहेगा। और अगर दिमाग गुलाम रहेगा तो कुछ हो नहीं। हमारा दिमाग बहुत सशक्त, पढ़े से पढ़े आपके कुलपति जी, उप कुलपति जी, दूसरे प्रोफेसर अपने दिमाग का 2%, 2.5% यूज करते होंगे जो उनकी क्षमता होगी। विद्यार्थी का 1% यूज करते हो, 0.5% यूज करते हो ना। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए कहते हैं कि वो लोगों ने अपने दिमाग को 3.5%, 4% यूज किया, 96% उनका दिमाग अनयूज रहा। और हमें लगता है कि अगर हमें और भगवान में कोई अंतर है तो खाली एक ही अंतर है कि जो भगवान है वो अपने दिमाग का 100% यूज करते होंगे, हम लोग अपने दिमाग का 2% यूज करते हैं। और जिस दिन हमको ऐसे टीचर मिल गए जो हमको इस काबिल बना दें कि हम अपने दिमाग को 100% यूज करने लगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे। शायद 33 करोड़ देवता की जो परिभाषा थी, जो हमारी संकल्पना थी, वो इसीलिए हो रही होगी कि हर उस समय का मानव अपने दिमाग को प्रयोग करने में इतना सक्षम रहा होगा कि हमने कल्पना की होगी कि जितने 33 करोड़ हमारी जनसंख्या है सब देवता है। तो मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटीज ऐसा माहौल देगी कि हमारे विद्यार्थी विद्या की अर्थी न उठाएं बल्कि देवता बने, मंदिर के देवता भी न बने, समाज के देवता बने। And third point, that was the extension of knowledge. आपने अपने आप डिग्री प्राप्त कर ली, आप अपने लिए नहीं पढ़ते, आप दुनिया के लिए पढ़ते हैं। अगर आपने अपने लिए कुछ किया तो यू आर नॉट इन राइट डायरेक्शन। जो हमने सीखा वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक बड़े से चैम्बर में बैठता है, लोगों को उससे मिलना कठिन होता है। राणा साहब तो मिले होंगे, मैं तो अपनी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ में कभी वाइस चांसलर से मिला ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, शकल ही नहीं देखी कि वाइस चांसलर होता कैसे। एक प्रोफेसर राजपूत थे, जीएस राजपूत थे, एनसीईआरटी के चेयरपर्सन थे, एनसीटी के चेयरपर्सन थे। वो कहते थे बीएचयू में वाइस चांसलर को हम पेड़ों की ओट से देखते थे कि वाइस चांसलर जा रहा है या उसकी गाड़ी जा रही है। यूनिवर्सिटीज की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप होनी चाहिए। और यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप कहां तक होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप पंचायत तक होनी चाहिए।
यूनिवर्सिटी क्लासरूम में नहीं होती है। जिस दिन आप यहां से निकल करके पंचायत के चबूतरे तक पहुंच सके, अपनी डिग्री वहां पर बैठे लोगों को दे सके, उनमें वो कुव्वत पैदा कर सके कि वो मान सके कि हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के लायक हैं, उस दिन आपने अपना काम पूरा किया। यूनिवर्सिटी का जब तक मोनोपोली रहेगा तब तक कुछ लोग अच्छे होंगे, और कुछ लोग अच्छे होंगे तो कुछ ही लोग सबल होंगे, कुछ ही लोग सफल होंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं। बातें बहुत सारी सी हो सकती हैं। मैं घड़ी देख रहा था, शुक्ला साहब ने आपको 4:30 बजे तक का समय दिया था। बहुत सारे से पॉइंट हैं, आपके साथ शेयर करके अच्छा लगता, लेकिन उन सब बातों में न पड़ करके खाली मैं इतनी ही आपसे अपेक्षा करूंगा कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप इंडस्ट्रियल अप्रोच यूनिवर्सिटी में यूज करोगे, पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, विद्यार्थी नहीं पैदा कर सकते। यूनिवर्सिटी इज लाइक एग्रीकल्चर। किसान खेत में जाता है, वो कभी काउंट नहीं करता है कि सुबह 4 बजे कितनी बार आया, उसने कितनी धूप सही, उसने कितनी सर्दी सही, वो पूरा अपना जीवन लगा देता है, और सरसों का फूल एक पेड़ पर निकलता है, उसकी मुस्कुराहट पर उसका सब प्रयास न्यौछावर हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्री वाला काउंट करता है कपड़ा बनाने से, ये धागा लगा, ये कपास लगा, ये मजदूरी लगी, ये ट्रांसपोर्टेशन लगा, और उसके बाद इतने % फायदा होना चाहिए, तब कपड़े की कीमत तय होती है कि ये 200 रुपए मीटर होगा कि 400 रुपए मीटर होगा। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के साथ वो जुड़ने चाहिए जिनकी एग्रीकल्चर वाली अप्रोच हो। यूनिवर्सिटी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ मशीन। यूनिवर्सिटी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिग्री डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। यूनिवर्सिटी तो कैपेसिटी बिल्डिंग हब होना चाहिए। आप इस स्किल इंडिया की बात कर रहे थे। क्या है स्किल इंडिया? स्किलिंग एट ए स्केल विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। व्हाट टाइप ऑफ स्किल? जिंदगी में जो हमारे सामने चेहरे बैठे हैं, अगर उनको हम कुछ मुस्कुराहट दे सके तो हमें स्किल है, और अगर हम मुस्कुराहट नहीं दे सकते हैं तो हमें स्किल नहीं है। यूनिवर्सिटीज को चाहिए तो विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस उठाएं, रेज कॉन्फिडेंस, गिव डायरेक्शन, और जब कॉन्फिडेंस उठाएंगे और डायरेक्शन उनको देंगे तो निश्चित रूप से जीवन में उनको वो मिलेगा जो इसके अलावा भी वो चाहते हैं। एक रफीक जकारिया हुए, उन्होंने जो कहा था, जो लिखा था उन्होंने, Universities should not prepare our student for one job, for first job or for second job or for third job, but they have to create n number of job opportunities before the students. आप जानते नहीं है, यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर नहीं जानता है कि 5 साल बाद किस तरीके के जॉब यहां पर होंगे। डेल कंपनी ने एक सर्वे किया कि आने वाले 10 साल में किस तरीके के जॉब होंगे। निकल करके आया कि 90% जॉब के बारे में हम जानते ही नहीं है कि 10 साल बाद मार्केट में किस तरीके के जॉब होंगे। तो जब आप जानते ही नहीं हो किस तरीके के जॉब होंगे तो आप पढ़ाओगे क्या? आप कौन सा मैथमेटिक्स का फार्मूला पढ़ा दोगे? आप कौन सी फिजिक्स पढ़ा दोगे? आप कौन सी केमिस्ट्री पढ़ा दोगे? कि जब आपको यही नहीं पता कि 10 साल बाद जॉब क्या होगा तो आप उसके लिए तैयार क्या करोगे? तो यूनिवर्सिटी को करना क्या चाहिए? हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चे को, तो हम मैथमेटिक्स इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि खाली वो एल्गोरिथम ठीक से बना सके। हम मैथमेटिक्स खाली इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि वो अलजेब्रा लगा सके, वो ज्योमेट्री लगा सके, वो ट्रिग्नोमेट्री लगा सके। हम मैथमेटिक्स उसको इसलिए पढ़ाते हैं कि उसकी जो मेंटल पावर है, जो उसकी मेंटल फैकल्टीज हैं,
जो क्रिटिकल थिंकिंग की मेंटल फैकल्टी है, जो रैशनल थिंकिंग की मेंटल फैकल्टी है, जो डिस्क्रिमिनेशन करने की मेंटल फैकल्टी है, वो फैकल्टी शार्प हो सके। और अगर ये फैकल्टी गंगा में नहाने से शार्प होती है तो गंगा में नहाना चाहिए, और अगर ये फैकल्टी सवाल लगाने से शार्प होती है तो सवाल लगाना चाहिए ना। तो पहले समझ लो कि अल्टीमेट पर्पस सवाल लगाना नहीं है, अल्टीमेट पर्पस आपकी मेंटल फैकल्टीज को शार्प करना है। और अगर आपकी मेंटल फैकल्टीज को शार्प करने के लिए जिस तरीके के प्रैक्टिकल, जिस तरीके की एक्सटेंशन एक्टिविटीज, जिस तरीके की पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। दो बातें कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। What to teach, that is important, but how to teach, that is more important ना। और हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम पढ़ाएं कैसे ना। How to teach is very important। हमको क्लास में उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया जिस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप एक विद्यार्थी को पढ़ाते हो तो उसमें इंडिविजुअलिटी डेवलप कर रहे हो। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, कनेक्टेड लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, सब लोग मिल करके सीख सके, वैसी लर्निंग को हमें बढ़ावा देना होगा। बाहर रामलाल श्यामलाल नहीं पास होते, बाहर एजुकेशन सिस्टम कंट्री का पास होता है। बाहर अगर आप कहते हो कि कहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप कहते हो फिनलैंड का अच्छा है। अब फिनलैंड का अच्छा है, आप किसी एक स्कूल का नहीं कह रहे हो, आप किसी एक विद्यार्थी का नहीं कह रहे हो। और कोई कंट्री तब पास होता है जब सब लोग मिलकर के पास होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल पास फेल होने का कंसेप्ट है, इस पर विचार करना होगा। स्कूल पास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी पास होना चाहिए, प्रदेश पास होना चाहिए, देश पास होना चाहिए। एक इंडिविजुअल रामलाल श्यामलाल नहीं पास होना चाहिए। और ये देश तब पास होगा, आप सोचिएगा, पांडिचेरी का स्कूल है, आश्रम का स्कूल है, वहां पर टीचर्स बीएड पास करके नहीं आते हैं। कोई किसी नौकरी से रिटायर हुआ, उसने कहा कि मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूं, वो आ गया। कोई कहीं से, कोई म्यूजिक का फील्ड है, उसने कहा मैं देना चाहता हूं, वो आ गया। और पढ़ने के बाद वहां मार्कशीट नहीं मिलती आपको कि आपके मैथमेटिक्स में 100 में से 50 नंबर आए कि 100 में से 80 नंबर आए। वहां पर जब बच्चा 2, 4, 5 साल निकाल लेता है, वो वहां से जाना चाहता है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो क्या सर्टिफिकेट मिलता है उसको कि आपने हमारे विद्यालय में 5 साल बिताए। और अगर आपने हमारे विद्यालय में 5 साल बिताए तो ये विद्यालय गारंटी देता है कि आपकी पर्सनालिटी में ये चेंजेस होंगे। मैथमेटिक्स लैंग्वेज की बात नहीं करता है, वो कहता है अगर आप पांडिचेरी आश्रम के पढ़े हुए हैं तो आपके व्यक्तित्व में यह खासियत होगी, मैथमेटिक्स में आपकी ऐसी पकड़ होगी, लैंग्वेज में आपकी ऐसी पकड़ होगी, पर्सनालिटी आपकी ऐसी होगी, लोगों के साथ मिल करके आप ऐसे व्यवहार करेंगे, टीम के साथ काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, खाली पैसा कमाने के लिए नौकरी करेंगे, समाज के लिए नौकरी करेंगे। और जब तक विश्वविद्यालय की ये स्थिति नहीं बनेगी कि वहां से निकला हुआ विद्यार्थी मार्कशीट के बेसिस पर नहीं, विश्वविद्यालय के बेसिस पर न जाना जाए, तब तक स्थितियां उत्तम नहीं। सब बात कह के मैं अपनी बात खाली ये समाप्त करूंगा कि आप सब कुछ सीख लो, बहुत सारी सी अच्छी बातें कही जा सकती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य शिक्षा का अच्छे व्यक्ति तैयार करना है। अगर आपने अच्छे व्यक्ति नहीं तैयार किए तो आपने कुछ नहीं किया। मैं कई बार कहता हूं, फिर कहना चाहूंगा कि एक मंत्र कहानी प्रेमचंद की ना सबने पढ़ी होगी, और बड़ी सिंपल सा कहानी कि किसी शहर में एक डॉक्टर होते थे, वहां पर चड्ढा थे, डॉक्टर चड्ढा साहब उनका नाम था। उसी शहर में एक बहुत कमजोर आदमी रहता था, वो भगत था, सामान्य किसान था। उस एरिया में भगत का लड़का बीमार हुआ, डॉक्टर चड्ढा को दिखाने गया वो अपनी पत्नी के साथ। डॉक्टर चड्ढा का खेलने का समय था, क्लिनिक बंद कर दिया था। डॉक्टर साहब ने देखने से मना कर दिया कि जब क्लिनिक खुलेगा तब आना,
ये प्रोफेशनलिज्म है ना कि अपने समय से काम करेंगे। भगत ने बहुत अभिनय भी नहीं करी, डॉक्टर साहब ने ध्यान नहीं दिया, कल आऊंगा, वो बच्चा कल का सूरज नहीं देख पाया, नहीं रहा, देहांत उसका हो गया। कुछ समय बाद डॉक्टर का लड़का शहर से विदेश से लौटा और एक किसी समय उसको सांप ने काट लिया बच्चे को। तो सांप का जहर उतारने का उस समय दवा नहीं थी, आज तो इंजेक्शन है, सलमान खान को काट लिया, 2-3 इंजेक्शन लग गए, ठीक हो गए। उस समय ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं था। अभी भी गाँव में मंत्र पढ़ करके सांप का जहर उतारते हैं, पीठ में एक थाली चिपकाते हैं कांसे की, और फिर मिट्टी के थोड़े थोड़े से ढेले मारते हैं उस पर, कुछ कान में उसके फूकते हैं, घी पिलाते हैं, जो व्यवस्था है वैसा करके। तो ढिढोरा पीता गया कि जो लोग सांप का मंत्र जानते हो, डॉक्टर के बच्चे को काट लिया है सांप ने, वो आकर के कोशिश करे इसका जहर उतारने के लिए। भगत था, वो मंत्र जानता था सांप का जहर उतारने का। वो चलने लगा अपने घर से, अपनी झोपड़ी से उठ करके, अपनी चारपाई से। उसकी पत्नी ने कहा कि भगत ये वही डॉक्टर है जिसने अपने बच्चे को नहीं देखा था। तो भगत ने कहा, तो कहा देखो अपना तो लाला नहीं रहा, अब तुम क्यों जा रहे हो। भगत रुके, ठिठके। फिर थोड़ी देर बाद भगत का मन नहीं माना, फिर पत्नी ने थोड़ा सा उसको याद दिलाया, लेकिन पत्नी ने सोच लिया कि मैं कितना भी याद दिलाऊं ये भगत मानेंगे नहीं, बड़े बेचैन रहेंगे। तो वो चुपके से मुंह पर अपना पल्लू डाल करके ये बहाना करने लगी कि जैसे वो सो गई। भगत चुपके से उठे, गए, अपने मंत्र का प्रयोग किया, बच्चे का जहर उतर गया। डॉक्टर बहुत कुछ देना चाहते थे, बिना कुछ लिए हुए भगत आकर के चुपके से अपनी चारपाई पर लेट गए कि मेरी पत्नी सो रही है, उसको मालूम भी नहीं है, पत्नी को मालूम था। मेरी अपेक्षा है कि ये विश्वविद्यालय आपको भले डॉक्टर चड्ढा न बनाए, लेकिन अगर भगत बनाया तो खुशी होगी। ये भगत बनाने की जिम्मेदारी आप ही पर है, आप शिक्षकों पर ही है। कि क्लास में एक बच्चा सो गया तो इधर से टीचर ने कहा कि रामलाल जी, श्यामलाल जी सो रहे हैं, इनको जगाइए। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि सर ये बात मेरे से मत कराइए, इनको आप ही ने सुलाया है, आप ही जगाइए।